अच्छा जी, एवोगैड्रोस नंबर, मोल. Mole is a unit of counting particles of any atom, molecule, element, ion or any substance. ठीक है? 1 mole of any molecule, atom or ion consists of 6.022 into 10 raised to the power 23 particles of that substance. ठीक है? Rather it is element, rather it's molecule or ion. Today we are going to learn about mass of 1 mole of a substance. ठीक है ना? Mass of 1 mole of substance. Mass में और mole में फर्क होता है. Mole means number of particles. Mole means number of particles and mass means its weight. Its weight. The mass of 1 mole of substance is called its molar mass. Mass of 1 mole of, ये definition देखिएगा. The mass of 1 mole of substance is called as molar mass. कि किसी भी substance का 1 mole है. 1 mole means it's 6.022 into 10 power 23 particles. इतने जर्रात हैं. But उन particles का mass कितना है? Mass means we have to weigh them. We have to weigh them. Weigh means we have to weigh, measure their weight. उनका weight जब हम measure करेंगे, that is called molar mass. Now, what are the molar masses of carbon and sulfur? The term representative particles in a substance are atoms, molecules, formula, units और ions. ये चीजें हम पढ़ के आए हैं. For instance, water exists as molecules. हमने ये भी पढ़ा है कि water exists as molecule. Therefore, 1 mole of water contains 6.022 into 10 power 23 molecules of water. ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि हमने हमने जो भी पढ़ा था 1 mole of anything is consist of 6.022 into 10 power 23 particles of that molecule, ion or atom. Here 1 mole of, beta 1 mole of water contains 6.022 into 10 power 23 molecules of water. क्योंकि हम we are saying that water exists as molecule. Hydrogen exists as H2 molecule. If we talk about simply hydrogen, hydrogen exists as H2 molecule. So 1 mole of hydrogen contains 6.022 into 10 power 23 molecules. जब भी हम मोल की बात करेंगे, 1 मोल मीन्स 6.022 into 10 raised to the power 23 of that substance. Rather it's a molecule, rather it's an atom or ion. Carbon exists as atom, so 1 mole of carbon contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Next one is gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. यानी कि जब हम इन masses को measure करेंगे grams में, then that mass becomes gram mass. If we measure mass of any atom, any ion or any molecule in grams, then that mass becomes gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. नेक्स्ट पेज पे आइएगा, बुक पेज नंबर 20. आपका स्कूल में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था? कंप्लीट हो गया था? अच्छा ठीक है. नाउ कम टुवर्ड्स बुक पेज नंबर 20. गौर से देखिएगा. is called gram atomic mass. ठीक है. Atomic mass of an element
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी कि किसी भी चीज के मैस को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में सिंपली मेजर करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड gram atomic mass. Is the gram atomic mass of carbon atoms is 12 gram? What is the gram atomic mass of sulfur atoms? अब ये चीजें हमें इसको देखिएगा. If each of the carbon and sulfur samples shown above contains 1 mole of atoms, why do the samples have different masses? अब एक मोल का तो मतलब यही है कि 12 इसका एटॉमिक मास यूनिट है. 1 carbon atom means its atomic mass is 12 atomic mass unit, 12 AMU. और उसके पार्टिकल्स कितने हैं? पार्टिकल्स इज 1 मोल 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स हैं उसके अंदर. Atomic mass of carbon is 12 AMU. अगर ग्राम्स में मेजर करेंगे so it will be gram atomic mass, 12 gram. Simply atomic mass है ना, simple atomic mass that is measured in AMU. But if we will measure it in grams, so it will be called gram atomic mass. Atomic mass of sodium is 23 AMU. अगर grams में measure करेंगे so it is called 23 grams. Atomic mass of zinc, Zn represents zinc. Zinc is 63.54 AMU. AMU जब एटॉमिक मैस यूनिट कह रहे हैं इसको, बट जब हम इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे देन इट इज 63.54 ग्राम. So gram atomic mass of an element contains 1 mole of that atom. So molar mass of 1 mole of carbon atom is 12 gram. Mass of 1 mole of sodium atoms is 23 gram. यानी कि बात वही है घुमा फिरा के. 1 मोल का मतलब ये है कि इतने पार्टिकल्स हैं और जितना एटॉमिक मैस है वही ग्राम्स के साथ लिखा जाएगा. अगर कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है ना, इफ वी से दैट इट्स ग्राम mass in grams, it will be 12 grams. If we say that 1 mole of sodium atom is equals to 23 grams, 23 AMU. Mass of 1 mole of zinc atoms is 63.54 AMU. AMU को जब हम grams में measure करेंगे so it will be measured in grams. नीचे आइएगा, molecular mass. Molecular mass of a substance expressed in grams is called gram molecular mass. Atomic mass को grams में measure करेंगे then that is called gram atomic mass. Molecular यानी कि जी बेटा mass of 1 मोल. 1 मोल का मतलब यही है कि जितना उसका एटॉमिक मैस है उतना ही उसका मैस ग्राम यूनिट में है. एटॉमिक मैस यूनिट AMU. मोल 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 मेजर नहीं करते. मोल का मतलब है काउंट करना, पार्टिकल्स काउंट करना. मोल मीन्स वी विल काउंट पार्टिकल्स. मैस का मतलब है हम उसको मेजर करेंगे, वेट करेंगे. दो चीजें हैं, मेजर करना इज समथिंग एल्स एंड काउंट करना इज समथिंग एल्स. अब आपकी बुक है, बुक में पेजेस कितने हैं? लेट सपोज आपकी बुक में 200 पेजेस हैं. 200 पेजेस है, इसका मतलब है आपने वो पेजेस काउंट किए हैं, दैट इज कॉल्ड मोल. लेकिन जब आप इसका वेट करेंगे, आपको इसका वेट हाफ केजी भी नहीं लग रहा, तो आप कहेंगे इट्स वेट इज हाफ केजी. वेट और मोल में बहुत डिफरेंस होता है. मोल मीन्स यू आर गोइंग टू काउंट इट्स पार्टिकल्स, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं. एंड मैस मीन्स यू आर गोइंग टू मेजर इट्स वेट, आप इसका वेट मेजर करते हैं. समझ आ गई बात की कि एक कार्बन के मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने. अब एक जैसे सॉल्ट के एग्जांपल ले लें. सॉल्ट नमक, नमक के अंदर उसके कितने पार्टिकल्स हैं आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन इट इज डिफाइंड कि 1 मोल, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का, नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl. सिंपल जो सॉल्ट होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl. 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स. लेकिन अब उसका वेट कितना है? वेट तो उसका हम जब करेंगे, मेजर करेंगे ग्राम्स में या एटॉमिक मैस यूनिट में. एटॉमिक मैस यूनिट में क्या होगा, उसके एटॉमिक मैसेस को ऐड कर देंगे. एटॉमिक मैस सोडियम का 23, क्लोरीन का 35, दोनों को ऐड कर दे, सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मैस आ जाएगा. यही एटॉमिक मैस उसका होता है ग्राम्स में. इफ वी मेजर इट इन ग्राम्स, मेजर करें अगर इसको ग्राम्स में, 23 + 35, 23 + 35 विल बी
58 ग्राम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का ग्राम एटॉमिक मैस। इज इट क्लियर? आर यू श्योर? अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताएं, मैं इसको थोड़ा और डीप एक्सप्लेन करती हूँ। कर दूं? अच्छा ठीक है, इधर देखिएगा। मोल मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वन मोल इट्स मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने जरात हैं वो तो हम नहीं काउंट कर सकते ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक यूनिट डिफाइन कर दिया, वन मोल। वन मोल मीन्स दैट इज 6.022 into 10⁻23 particles. Rather it is atom, rather it is ion, rather it is molecule, ठीक है। वन मोल में इतने हैं। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ वी काउंट, ठीक है। बट व्हाट इज इट्स वेट? लेट सपोज हम वाटर की बात करते हैं, H2O। अब देर आर टू मॉलिक्यूल, H2, H2 means 6.022 into 10⁻23 of H2. H2 is molecule, whereas oxygen, oxygen को भी split करें, it will be 6.022 into 10⁻23 particles of oxygen. ठीक है, ये बात हो गई पार्टिकल्स की, बिकॉज इट इज वन मोल ऑफ वाटर, वन मोल ऑफ वाटर। अब आ जाए इसके एटॉमिक मैस पे। इफ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस हम कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक मैस ऑफ H2O यानी कि वाटर। एटॉमिक मैस मींस you will add its masses. Atomic mass of hydrogen is 1, whereas atomic mass of oxygen is 16. So there are two atoms of hydrogen, 2 times 1 plus oxygen is 1 here, so it is 16. So it will be 2 ones are 2, 2 plus 16, that is 18 atomic mass unit. It is one क्या कहेंगे, atomic mass ऑफ वाटर, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ वाटर आ गया 18 AMU। अब मैं अगर इसको ग्राम्स में मेजर करूंगी ना, ग्राम्स में, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम का मतलब क्या है? सिंपली AMU हट जाएगा और इसके साथ आ जाएगा 18 ग्राम्स। ये हमने इसको मेजर किया है। मेजर मीन्स वी हैव वेड इट। जब काउंट करेंगे पार्टिकल्स, दे आर 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। जब मेजर करेंगे देन दैट इज कॉल्ड वेट, वेट और मैस। इज इट क्लियर? आप समझ आइए बात की? क्या चीज? 2, 1 और 16 एटॉमिक मास निकालना भूल गए, हमने पहले किया था। There are two molecules of hydrogen, so that's why I have written two atoms of hydrogen, so that's why I have written 2 here. Times atomic mass of hydrogen is 1. Atomic mass of hydrogen is 1. Plus it was 1 time oxygen. 1 time oxygen is atomic mass of oxygen is 16. 2 ones are 2, 2 plus 16. एक मिनट बुक पेज नंबर ओपन करें, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आपने मेरा ख्याल है केमिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज नहीं किया। आप आइएगा बुक पेज नंबर 14 पे आए जरा, ये देखें। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये वो चीज है, हमने एटॉमिक मैस निकाला है इसमें, ये चीज क्लियर? ठीक है, दिस इज एटॉमिक मैस। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये AMU हटा दें, एटॉमिक मैस का यूनिट हटा दें, तो और ग्राम्स लगा दें, GM ग्राम्स लगा दें, सो इट विल बी, पहले तो हम इसको सिंपली एटॉमिक मैस कह रहे थे, नाउ इट विल बिकम ग्राम एटॉमिक मैस। सिंपली AMU हटा के ग्राम्स में ले जाए, सो दिस एटॉमिक मैस विल बिकम ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ। अब इसी तरह अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये जैसे वाटर, वाटर वाज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है।
So it is 18.016 because हाइड्रोजन का होता है 1.008, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 1 कंसिडर करते हैं. Molecular mass of C6H12O6, इसी तरह से you can see that there are 6 atoms of carbon here, 6 times atomic mass of carbon, that is 12, plus 12 times hydrogen. Hydrogen is 1.008 multiplied by 12, plus oxygen is 16, 16 times 6 is this. सबको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, it will be 180.096 AMU. अब वो ये कह रहे हैं डोंट टेल अस आंसर इन AMU, टेल अस आंसर इन ग्राम्स. तो AMU की जगह G आ जाएगा, G स्टैंड्स फॉर ग्राम. और जब ग्राम्स में लिखेंगे, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, इट विल बिकम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस एलिमेंट. इज इट क्लियर? सिमिलरली वी हैव लर्नड अबाउट फार्मूला मास. फार्मूला मास को भी जब हम AMU के बजाय ग्राम्स में लिखेंगे, सो दिस थिंग विल बी ग्राम फार्मूला मास. Formula mass. Ionic compound represented by formula unit that represents the simplest ratio between the ions of compounds. For example, sodium chloride, potassium chloride, copper sulfate. Formula mass of sodium chloride. Sodium chloride. Sodium is 23 atomic mass unit. Chlorine is 35.5. Add both, it will be 58.5 AMU. But if we consider it in grams, so it will be gram formula mass. ये formula mass है. When we will consider it in gram formula mass, it will be AMU की जगह it will be grams. Formula mass of potassium chloride. Potassium का atomic mass is 39 plus chlorine का is 35. जी बेटे, किन दोनों में? कुछ भी नहीं है. जब हम एटम की बात करते हैं, सिंपली इफ वी टॉक अबाउट सिंगल एटम, तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल मींस आपके पास पूरा एक मॉलिक्यूल कंसीडर हो रहा है, जैसे H2O, C6H12O6, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 और मोर देन आप 1 कह लें, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड, एक कोई जो है ना वो मोर देन 1 होता है, ये चीज, दिस इज मॉलिक्यूल. अब जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपके पास सिंपल रेशो में आ रहे हैं. सिंपल रेशो में इसको कहते हैं फॉर्मूला मास. देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास. फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास आपके पास सेम होता है. अब नेक्स्ट आए इस पे डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास. बस इसको करके फिर टॉपिक को एंड करेंगे. ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. एक मिनट में इसकी स्क्रीन शेयर कर दूं जरा, फिर इसको फॉर्मूला मास है तो इट इज फॉर्मूला इन मॉलिक्यूलर स्टेट, whereas gram formula mass represent 1 mole of ionic formula units of a compound. ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है, आयन जी, आयन आयन वो होते हैं जिसमें बैलेंस ना हो, जिसमें किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया हो, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया हो, उस पर आयोनिक. आयोनिक का मतलब ये है ना, आयनिक जो कंपाउंड है जिसमें आयन कोई ना कोई ऐड है, जिसमें कोई ना कोई आयन ऐड है, उसके मैथ को हम फॉर्मूला